Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video I am going to solve MPPSC Assistant Professor question paper which was conducted in 2024. This video contains physics paper and क्वेश्चन 1 से 50 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पे और भी बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सॉल्यूशन वीडियो अपलोडेड हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, the ideal operational amplifier has the following properties. Ideal op-amp has properties: infinite input impedance, zero output impedance and infinite bandwidth. It has a flat response over a very narrow. ये भी आपका incorrect हो जाएगा because जो infinite bandwidth is there, तो कोई भी ऑप्शन A, B, C correct नहीं है, तो none of these option D is correct here. Question 2, the high pass filter has a high pass filter allows signals with frequencies above the cutoff frequency to pass with a constant gain, and for frequency below the cutoff the gain is attenuate and approaches to zero as frequency approaches to zero. So option A is correct. It is for high pass filter, gain of zero starting from zero frequency up to cutoff frequency above which the gain is constant. And जो ऑप्शन B में मेंशन किया गया था यह लो पास फिल्टर के लिए था, gain A up to cutoff frequency and zero gain for higher frequencies. Frequency and phase modulation belong to a class of modulation known as angle modulation. Frequency modulation and phase modulation are classified under angle modulation, where the phase angle or frequency, which is the derivative of phase of the carrier signal, is varied in proportion to the message signal. Option C is correct here. Question number 4, pulse code modulation is a method of converting. Pulse code modulation is digital encoding method that converts analog signal into digital signals. So option B is correct here. Question 5, the distortionless detection or recovery of the amplitude modulating signal from the modulated carrier can be achieved by, एक तरह से demodulator यूज करने वाले हैं। The distortionless recovery of the amplitude modulated signal is achieved using envelope detection which relies on non-linear rectifiers. तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज लीनियर रेक्टिफायर्स। जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए, नॉन लीनियर रेक्टिफायर्स। ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन बी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, if beta and kappa respectively represent the volume expansivity and isothermal compressibility of thermodynamic system, then the ratio beta over kappa will represent volume expansivity beta equal to 1 upon v, partial derivative of v with respect to t at constant p, isothermal compressibility kappa equal to minus 1 upon v dou v over dou p at constant t, and अब dv निकाल लीजिए यहाँ से, अकॉर्डिंगली इनका रेशियो ले लीजिएगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए, partial derivative of p with respect to t at constant v. Question number 7, which one of these represent the chemical potential mu of a thermodynamic system? Change in internal energy or U, du equal to TdS minus PdV plus mu dN. केमिकल पोटेंशियल अगर इन्वॉल्व होगा तो आप तीनों टर्म लीजिए, अदरवाइज दिस टर्म हम लोग यूज करते हैं। इस केस में हमको यूज करना था एंड एट कॉन्स्टेंट U एंड V, ये जीरो होगा और ये भी जीरो हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, del S over del N at constant U and V multiplied by T. तो ऑप्शन D is correct here. Question number 8, according to the laws of thermodynamics which of these relations is correct? तो du equal to TdS minus PdV, partial derivative of U with respect to V equal to this, ये वैल्यू आ जाएगा, एंड dou S over dou V की वैल्यू आप मैक्सवेल इक्वेशन से रख लीजिएगा। एस पी टी वी, यहाँ पर देखिए एस पी टी वी अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव सेंस आने वाला है। इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था, इसमें आप पेपर जाकर देख सकते हैं, अपलोडेड है चैनल पे। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डो यू ओवर डो वी इक्वल टू टी डो पी ओवर डो टी माइनस पी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 9, द फेज स्पेस डायग्राम ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m एंड टोटल एनर्जी E विल भी। ये क्वेश्चन देखिए जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है 2025 में अप्रैल में हुआ था, यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी पूछा हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन। एंड जो क्वेश्चन पेपर है ये आल्दो
एमपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 में, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं 25 में। तो यह क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर पुट कर दिया हूँ फॉर अ रेफरेंस पर्पज। इसको प्लॉट करना पड़ेगा मोमेंटम वर्सेस एक्स में, और जो यहाँ पर टोटल एनर्जी होने वाला है इट इज़ समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको आप अरेंज कर लीजिए, तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 2me का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 2e ओवर के का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम बता पाएंगे, एक को हम लोग लेने वाले हैं ए और बी रहने वाला है, एक हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा और एक सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी सेमी माइनर एक्सिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, और दूसरा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन 10, द ensemble ऑफ सिस्टम इन विच एवरी सिस्टम हैज इक्वल एनर्जी एंड whose all quantum states are equally probable is called माइक्रो कैनोनिकल। इसमें देखिए जो एनर्जी होने वाला है वो क्या होने वाला, कांस्टेंट होने वाला है, तो इट इज़ रिफरिंग अ कांस्टेंट एनर्जी। अगर कांस्टेंट एनर्जी रहने वाला है तो हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार टर्म्स देख लीजिए, ये जो यहाँ पर क्वांटिटीज लिखे गए हैं ये क्वांटिटीज कांस्टेंट होने वाले हैं रिस्पेक्टिव इंसेम्बल में। माइक्रो कैनोनिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम एंड एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। कैनोनिकल इंसेम्बल में नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ग्रैंड कैनोनिकल में केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेस्ट हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 3 डायमेंशन में मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। सिंपल क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक लैटिस ही होता है। एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी होता है, बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होता है। तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के लिए था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ अ 2 डायमेंशनल लैटिस आर। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, 2 डायमेंशन में है। द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ए स्टार ऑफ इट्स रेसिप्रोकल लैटिस विल बी। ए का करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होने वाला है। देखिए जो रिलेशन होता है ए का ए स्टार से करेंगे 2 पाई आएगा, ए का रेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लाइक बी स्टार सी स्टार से करने वाले हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो इसी तरह से बी का बी स्टार से करते तो 2 पाई आता, बी का ए स्टार से करेंगे 0 आएगा। अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो जब हम ऑप्शन चेक करेंगे बी ए स्टार के सभी में आई दिया है दैट्स ओके, सभी का 0 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसको चेक कीजिए आप, ए डॉट ए स्टार स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। इसके साथ अगर चेक करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन डी में सेटिस्फाई करने वाला है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 14, द डिबाई कॉन्टिन्यूम मॉडल इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। द डिबाई मॉडल अप्रोक्सीमेट अ सॉलिड एज अ कॉन्टिन्यूम मीडियम treating atomic vibrations as sound waves. This assumption holds when wavelengths are much longer than interatomic distances. Question 15, at absolute zero temperature the semiconductors have band structure identical to. At 0 Kelvin temperature semiconductor behaves as an insulator. तो insulator जैसा होने वाला है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Question 16, on the surface of earth we receive about 1.37 kilowatt of energy per square meter from the sun. Calculate the electric field associated with the sunlight on the surface of earth, assuming that it is essentially monochromatic with lambda equal to 6000 angstrom. Intensity of electromagnetic wave I equal to half epsilon naught c E naught square. E naught is the मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस EM वेव। तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कीजिए, इट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 1000 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 17, अ पॉजिटिव चार्ज Q इज फायर्ड हेड ऑन एट अ डिस्टेंट पॉजिटिव चार्ज Q which is held stationary with an initial velocity V0. It comes in, decelerates to V equal to 0 and returns out to infinity. What fraction of its initial energy, half m V0 square, is radiated away? Assume V0 is less than c
and that you can safely ignore the effect of radiative losses on the motion of the particle. Apply the energy conservation. The initial kinetic energy is converted into potential energy at the closest approach. दोनों बराबर होने वाला है और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कूलम्बिक इंटरेक्शन से आएगा। काइनेटिक एनर्जी शुरू में क्या है, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, और हमारे पास इसमें पोटेंशियल जीरो था। यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, v इक्वल टू जीरो हो गया तो पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे। तो जो मिनिमम अप्रोच के लिए x मिनिमम आएगा, इट इज़ स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m v नॉट स्क्वायर। द पावर रेडिएटेड बाई एन एक्सीलरेटिंग चार्ज p इक्वल टू म्यू नॉट q स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाई 6 पाई c। a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये वैल्यू हो जाएगा कूलम्बिक फोर्स के, तो m से डिवाइड कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगा स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m x स्क्वायर। द टोटल एनर्जी रेडिएटेड ड्यूरिंग द मोशन इज रेडिएटेड एनर्जी रहेगा ट्वाइस माइनस इनफाइनाइट टू x मिनिमम इंटीग्रल ऑफ p dt। सॉल्व कर लीजिएगा, वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, t टू x में कन्वर्ट कर लीजिएगा और dt इक्वल टू डी एक्स बाई वी। v की जो वैल्यू आएगी एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसको पुट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली सॉल्व करने पे यह वैल्यू मिल जाएगी रेडिएटेड एनर्जी का। इनिशियल एनर्जी ई नॉट की वैल्यू गिवन था, दोनों का रेशियो ले लीजिए, 16 डिवाइड बाई 45 स्मॉल q डिवाइड बाई कैपिटल Q v नॉट बाई c का होल क्यूब। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 18, एन एयर फिल्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ डायमेंशन a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 2 सेंटीमीटर transports energy in dominant mode at a rate of 2 milliwatt. If the frequency of operation is 10 gigahertz, determine the peak value of the electric field in the waveguide. The rectangular waveguide operating in the TE mode, the dominant mode TE10 होने वाला है, and TE10 के लिए जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगा C डिवाइड बाई 2A। ये आपका जो लार्जर डायमेंशन रहेगा उसको यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की। वेव इम्पिडेंस ZTE इज इक्वल टू इंट्रिंजिक इम्पिडेंस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस FC डिवाइड बाई F होल स्क्वायर। F की वैल्यू यहाँ पर 10 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, और जो ईटा है इंट्रिंजिक इम्पिडेंस फॉर फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 377 ओम आती है। इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये जो Z है इम्पिडेंस मिल जाएगा, और जो ट्रांसमिटेड पावर होगा P इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर AB डिवाइड बाई 4Z। अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 63.77 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 19, एन एयरलाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ 70 एंड अ फेज कांस्टेंट ऑफ 3 रेडियन पर मीटर एट 100 मेगाहर्ट्ज। कैलकुलेट द इंडक्टेंस पर मीटर एंड कैपेसिटेंस पर मीटर ऑफ द लाइन। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 इक्वल टू स्क्वायर रूट L बाई सी, एंड जो फेज कांस्टेंट है बीटा इक्वल टू मेगा स्क्वायर रूट LC। वैल्यू दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस 70 है और जो हमारे पास फेज कांस्टेंट है 3 रेडियन पर मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे अकॉर्डिंगली वैल्यू सॉल्व कीजिए, C इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई ओमेगा Z0, एंड वैल्यू पुट करने पर 68.2 पिको फैरेड पर मीटर, एंड L की वैल्यू आ जाएगा Z0 स्क्वायर C which is equal to 334.2 nano henry per meter. Option A is correct here. Question number 20, in a homogeneous non-conducting region where mu r equal to 1, find the value of relative permittivity and omega if E equal to 30 pi exponential iota omega t minus 4 by 3 y a z cap v by m and h equal to 1.0 exponential iota ओमेगा टी माइनस 4 बाई 3 वाई ए एक्स ए बाई एम। फर्स्ट हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी फॉर दिस। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ईटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 30 पाई हियर एंड 1 हियर, तो इनका रेशियो लेंगे 30 पाई आ जाएगा। जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस होता है इट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से इसको आप एप्सिलॉन आर को निकाल सकते हैं जो कि आपका रिलेटिव परमिटिविटी होने वाला है। इट इज़ इक्वल टू ईटा 0 डिवाइड बाई ईटा होल स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए, इट इज़ 16। तो यहाँ से आपका ओनली ऑप्शन डी में दिया हुआ है, करेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका ओमेगा है, ओमेगा को अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस फॉर्मेट में है तो जो ओमेगा की वैल्यू आने वाली है बीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, बीटा की वैल्यू 4/3 हो जाएगा इनटू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है c के बराबर, तो 3 इंटू 10⁸ और 1 अपॉन स्क्वायर रूट एप्सिलॉन आर इट इज इक्वल टू 1/4, तो 10⁸ रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 21, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली यूज्ड टू टेस्ट, it is used to test all of these: independence of attributors, non-parametric test, and analysis of variance. Question number 22, the transducers that are self-signal generating are known as. Active transducers are self-signal generating, meaning they produce an electric output signal directly from the physical input without requiring an external power source. Option B is correct here. Question number 23, apart from temperature measurement, thermistor can also be used. Thermistor known for their temperature dependent resistance, और इनका यूज सभी में होने वाला है to measure the power at high frequency, measurement of level, flow and pressure of liquids, vacuum measurements. Option D, all of the above is correct. Question 24, the quantities to be measured in vibrating system are डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी होने वाले हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस आएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऑल ऑफ एबव ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 25, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यूजेस वोल्टेज शंट फीडबैक, एंड नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूजेज वोल्टेज सीरीज फीडबैक। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, तो जो ऑफिशियल आंसर की में था ऑप्शन सी गिवन था। क्वेश्चन नंबर 26, टू वेक्टर्स phi1 and phi2 are said to be orthogonal if their scalar product is 0. A dot b, it is scalar product of a and b vectors, इसकी वैल्यू होती है ab cos थीटा। अगर ये ऑर्थोगोनल होंगे दैट इज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी और ये 0 आ जाएगा। क्वेश्चन 27, A square matrix is said to be non-singular if non-singular मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, दैट इज इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलते हैं। इट्स डिटर्मिनेंट डज नॉट वैनिश, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 28, इफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इट इंडिकेट्स दैट वेक्टर विल बी कोप्लेनर, और कोप्लेनर रहेंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होने वाले हैं। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रहा है तो वेक्टर विल बी इंडिपेंडेंट और वी विल गेट अ वॉल्यूम। इस केस के लिए ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन 29, द बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेयर पी इज ऑर्डर ऑफ बेसल इक्वेशंस। जो स्पेशल फंक्शन आपको पढ़ने हैं यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे जो n होने वाला है ऑर्डर ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज रिटन एज दिस। इन ऑर्डर टू मेक दिस इक्वेशन होमोजीनियस द कंडीशन इज टू पुट, जो ये राइट साइड में है क्यू एक्स है इसको आप 0 कर दीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 31, द लाइक्लीहुड ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन रहेगा साई इज इक्वल टू रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट, दोनों पार्ट का प्रोडक्ट है। यहाँ पर सेपरेबल केस अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग एंगुलर पार्ट की बात करें तो ये वैल्यूज कॉस थीटा में एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स है उसमें आ रहा है, फाई टर्म में एक्सपोनेंशियल टर्म है। फाई को एजिमुथल एंगल बोलते हैं और जो थीटा है दैट इज द जेनिथ एंगल। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे तो देखिए जो वाई की जो वैल्यू आने वाला है यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ई रेस्ट पावर 0 बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाई पर डिपेंड नहीं करने वाला है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंगुलर पार्ट के लिए डज नॉट डिपेंड ऑन फाई, तो जो वैल्यू होता है डिपेंड करेगा थीटा पे जो कि जेनिथ एंगल होने वाला है एंड आर पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन एजिमुथल एंगल, ऑप्शन ए करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन क्वांटम नंबर एस ऑफ हाफ इज an outcome of the
स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट एंड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने वेव नेचर को बताया था। पार्टिकल हैज़ वेव नेचर, मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव नेचर, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेक्शन कराया था क्रिस्टल से, तो ये आपका वेव नेचर को दिखाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को, और जो जीमान इफेक्ट है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 33, हीलियम एटम्स इन सिंगलेट स्टेट्स एंटी पैरेलल स्पिन्स कंस्टिट्यूट एंड दोज इन ट्रिपलेट स्टेट पैरेलल स्पिन्स कंस्टिट्यूट। तो अगर हमारे पास सिंगलेट स्टेट रहेगा तो इसको बोलेंगे पैरा हीलियम, जो लोअर मल्टीप्लिसिटी रहेगा उसके लिए पैरा, हायर मल्टीप्लिसिटी को आर्थो से, ट्रिपलेट स्टेट में है आर्थो हीलियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग लेजर? एक्टिव मीडियम इट इज रिक्वायर्ड, रेजोनेटर कैविटी रिक्वायर्ड होगा, पंपिंग मैकेनिज्म टू अचीव अ पॉपुलेशन इन्वर्जर, तो ये तीनों रिक्वायर्ड होने वाले हैं। जो सोर्स ऑफ लाइट है ये नेसेसरी नहीं है। ऑप्शन ए बी सी रिक्वायर्ड होंगे लेकिन सोर्स ऑफ लाइट नेसेसरी नहीं है। 34 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एन इंसिडेंट फोटोन इज नॉट रिक्वायर्ड? स्टिमुलेटेड इमिशन में रिक्वायर्ड होता है फोटोन, अब्जॉर्प्शन में रिक्वायर्ड होगा। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन एक आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। हमारे पास जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन होल, जो फोटोन जनरेट होगा इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, और इसमें कोई भी इंसिडेंट फोटोन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 36, सोलर रेडिएशंस ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रे ओपेक सरफेस विथ एन एमिसिविटी ऑफ 0.4 and emissive power of black body is 400 watt per meter square. The radiosity of surface will be, radiosity it is equal the total amount of radiation leaving a surface per unit area includes both the reflected radiation and the emitted radiation by the surface itself. Since the surface is opaque and gray, reflectivity rho equal to 1 minus absorptivity is equal to 1 minus emissivity, दोनों बराबर होने वाले हैं। अल्फा और इमिसिविटी दिया हुआ बराबर होगा बिकॉज इट इज ग्रे, ब्लैक बॉडी से ले सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन रो मल्टीप्लाइड बाय इंसिडेंट पावर जो भी यहाँ पर था उसको यूज कर लीजिए, तो 600 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इमिटेड रेडिएशन इमिसिविटी मल्टीप्लाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ दिस, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके 160 आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, दैट इज द रेडियोसिटी 760 वाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ई डिटरमाइन द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द एटम, इनकरेक्ट है। ई डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब लेवल्स इन द एटम, इनकरेक्ट है। ई डिटरमाइंस द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स एंड सब लेवल्स इन द एटम, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। Question number 38, what will be uncertainty in the momentum of an electron if uncertainty in its position is 1 angstrom? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू h कट बाई 2, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। 5.28 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, टनल इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, it can be explained on the basis of uncertainty principle. Option C is correct here. Question 40, the energy operator in one dimension it is equal to iota h cut del over del t. Option A is correct here. Question number 41, the set of all rotations in 3-dimensional space forms a group denoted by, तो 3 डायमेंशन के लिए 3 देखिए तो हमारे पास 2 ऑप्शन में है, और यह ऑर्थोगोनल 3 है या स्पेशल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस डायमेंशन 3 है। तो जो रोटेशनल मैट्रिसेस होते हैं वह स्पेशल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं, उनका डिटरमिनेंट क्या होता है, +1 होता है। तो स्पेशल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ डायमेंशन 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 42, द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर टेंसर्स ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप, सेम टाइप का रैंक आएगा, सेम टाइप के टेंसर आने वाले हैं, और टेंसर ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 43, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड एज, पोलर फॉर्म में यू कैन राइट इट आर ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, आर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हो जाएगा, थीटा आपका आर्गुमेंट आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इसको एक्सपेंड कर दिया गया है तो आपको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44,
द इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई 2 एफ ए प्लस एफ बी इज, ये आपका ट्रिपोजाइडल रूल में जाने वाला है। एन स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो स्टेप साइज आप h लेना पड़ेगा। x1 माइनस एक्स नॉट एच है, x2 माइनस x1 h है, इक्वली स्पेस्ड इंटरवल लेना पड़ेगा। इन दैट केस इसकी जो वैल्यू आती है एक्स नॉट टू एक्स एन वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई टू वाई नॉट प्लस ट्वाइस वाई वन वाई टू एंड सो ऑन, और जो लास्ट टर्म रहेगा वाई एन। एक बार अगर हम लोग जस्ट एक स्टेप ले रहे हैं, वाई नॉट से वाई वन जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिपेजियम बनता है। और ये वैल्यू क्या होता है, इसका जो एरिया आएगा, एरिया क्या आ जाएगा, दिस बेस जो कि h आ जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट h आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट y नॉट और y1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका जो एवरेज हाइट है वो मालूम हो जाएगा। तो जो एरिया आने वाला है h बाई टू वाई नॉट प्लस y1। अगर सिंगल स्टेप यूज करना है तो ये जो हमारे पास फार्मूला लिखा गया सिंगल स्टेप का लिखा गया है, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 45, अ सिंपल प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग द ट्रंकेशन एरर इज कॉल्ड। देखिए जो इंटरपोलेशन होता है यह इंटरमीडिएट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए होता है, और जो रुंगे-कुट्टा मेथड होता है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटिंग ट्रंकेशन एरर है आपका एक्सट्रापोलेशन अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, एनी सिस्टम ऑफ अ कैनोनिकल एंसेम्बल कैन एक्सचेंज विथ इट्स एनवायरनमेंट। तो कैनोनिकल एंसेम्बल में कांस्टेंट क्या रहेगा, पार्टिकल वॉल्यूम टेम्परेचर, एक कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सचेंज क्या कर पाएगा, एनर्जी, एनर्जी ओनली, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटका असिस्टेंट प्रोफेसर में, आप इसको भी देख सकते हैं। ये डिटेल सॉल्यूशन इसका अपलोड है चैनल पे। क्वेश्चन 47, द ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डायरेक्टली आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन 48, इफ z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e बाई के बी टी प्लस e रेस्ट पावर माइनस e बाई के बी टी be the partition function of a single two energy level system in canonical ensemble, then the corresponding entropy would be। entropy का जो फार्मूला रहेगा in canonical ensemble S इक्वल टू k log z प्लस एनर्जी डिवाइड बाई t। एवरेज एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी सिंपली आप यूज कर सकते हैं। तो z इक्वल टू यहाँ पर मेंशन किया गया पार्टीशन फंक्शन गिवन है, इसको आप 2 cos हाइपरबोलिक e बाई के बी टी भी लिख सकते हैं। एंड जो एवरेज एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टर्म्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो कॉस और टैन में न दे करके इसी टर्म में दिया गया था, इसमें भी आप सॉल्व करेंगे लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी यहाँ पर दिख रहे थे। ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्वेश्चन 49, क्वांटम स्टैटिक्स बिहेव्स एज क्लासिकल स्टैटिक्स इफ, जो यहाँ पर टर्म्स लिखा गया है जी आई इज द डिजेनरेसी ऑफ द ith एनर्जी लेवल एंड एन आई इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट लेवल। तो जो जी आई है अगर ये ग्रेटर देन एन आई होगा तो ये बिहेव करेगा एज क्लासिकल। क्वांटम स्टैटिक्स रिड्यूस टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स इन द क्लासिकल लिमिट वेयर द नंबर ऑफ अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स जी आई इज मच लार्जर दैन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स Ni in those states। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 50, द मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स contained in volume V at absolute temperature T in a magnetic field B is where mu is the magnetic moment of single spin। The average magnetic moment per particle it is equal to mu tan hyperbolic mu B by kBT। म्यू आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सिंगल स्पिन है एंड जो टोटल मैग्नेटाइजेशन है आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके गाइस, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड हो जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।